Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland, and very warm welcome to all my new subscribers who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. I am Ummi Muhammad, and today we are going to solve the exercise of chapter number 11, The Railway Journey, from New Oxford Modern English Book 3, and it is the third edition of this book. अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप अपने ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट, क्यूरी और सजेशन रिलेटेड टू माय कंटेंट एंड माय नीश, यू कैन फ्रीली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो. और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें. चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Oh Allah, increase us in knowledge. The first section of exercise is section A, comprehension. Question number 1 है हमारे पास. Answer the following questions. नीचे दिए गए सवालात के जवाब दें. A question है, Why were Sahir and Razi traveling by train? साहिर और रजी ट्रेन पे ट्रैवल क्यों कर रहे थे या ट्रेन का सफ़र क्यों कर रहे थे. B, How did the boys pass their time on the train? वो अपने ट्रेन के अंदर अपना टाइम पास कैसे कर रहे थे, वक्त कैसे गुजार रहे थे. C, What happened when the train stopped at the station? जब रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी तो क्या हुआ. D, How was the thief caught? चोर कैसे पकड़ा गया. E, What did Sahir do to stop the train? साहिर ने रेलगाड़ी को रोकने के लिए क्या किया. Would you have stopped the train? क्या आप रेलगाड़ी को रोक देते. What might have happened? क्या होता if the train had not been stopped? अगर गाड़ी ना रुकती. The answer of first question is Sahir and Razi were traveling to Lahore to stay with their friend Moez. B, The boys spread their sheets on the bunks, ate their food while enjoying the cool night air blowing through the open window, watched the lights of the cars in the distance, and then settled down for the night. इन्होंने ये काफ़ी सारे काम किए टाइम गुजारने के लिए. Next is C, When the train stopped at the station, जब गाड़ी स्टेशन पर रुकी, a man put his hand through the window and stole Razi's wallet. उसने खिड़की से अपना हाथ अंदर डाला और उसके पॉकेट में से, रजी के पॉकेट से उसका वॉलेट निकाल लिया. The next answer is D. Razi and Timmy chased the thief on the platform. Razi और Timmy दोनों ने चोर का पीछा किया उस प्लेटफॉर्म पर. Razi told the station master. Razi ने स्टेशन मास्टर को बताया and some other men और कुछ दूसरे आदमियों को. What happened? कि क्या हुआ. And just then they heard a cry from the railway yard. उसी वक्त उन्हें रेलवे यार्ड से कराने की या रोने की आवाज़ आई, चीखने की आवाज़ आई. They climbed over the railing into the yard. वो रेलिंग से ऊपर चढ़े और यार्ड यानी उसके सहन में छलांग लगाई. And found that Timmy had trapped the thief. और उन्होंने ये वहाँ पर जाकर ये देखा कि टिमी ने चोर को पकड़ लिया है या रोक कर रखा है, फंसाया हुआ है. क्वेश्चन ई का आंसर है साहिर pulled the emergency chain to stop the train. If the train had not been stopped, Rizzy might left behind on the platform. The next question is who said the following. यहाँ पे हमें speech clouds given है, 6 clouds हैं और उनमें कुछ statements दी गई हैं. हमने बताना है कि ये सब जो words हैं ये किसने कही है, ये statements किसने कही हैं. Statements को read करते हैं. A, I pulled the chain. B, over there near the wall. C, what happened. D, don't do anything foolish. E, stop thief. And F, well done Timmy. अगर हम स्टेटमेंट्स को देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि फ़र्स्ट जो है वो साहिर ने कही थी. बी, वन ऑफ द मैन, उनमें से किसी एक आदमी ने ये बात कही थी. सी, द स्टेशन मास्टर. डी, रजीज़ फादर. ई, रजी. एंड लास्ट में जो है वो है रजी, या फिर उसके अलावा एवरीवन, हर कोई जो वहाँ पर था उसने भी यही बात की थी. The next question is question number 3. Answer the questions about these lines taken from the story. स्टोरी से लाइन ली गई है और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए हैं. लाइन को हम रीड कर लेते हैं. The god blew his whistle. Slowly the train began to move. Everyone waved. First question है where was the train going? Second है what advice had those on the train received and from whom? और third C question है what did those on the train do as soon as the train left the station? The answer of these questions are A, to Lahore city station. B, Razi's father told Razi to be careful and not to do anything foolish. Razi's mother told him not to stand near the door or to put his hand out of the windows. Sahir's sisters told the boys to look after their money. And C, they spread their sheets on their bunks. The next section of exercise is section B, working with words. Question number 1 है underline the adjectives given in the sentences below. नीचे कुछ sentences given है, इसमें से हमने adjectives को underline करना है.
या सेपरेट करना है। यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और उससे आपने खुद से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है। रीड करते हैं सेंटेंसेस को। ए है ही ट्राइड टू लिफ्ट अप द सर्कुलर स्टोन। बी ही पुल्ड ऑफ हिज ब्लू शर्ट। सी द ओल्ड किंग रूल्ड ओवर अ लार्ज कंट्री। डी आई होप यू विल जॉइन द फाइनल गेम। ई प्लीज गिव मी बैक माई वेलवेट ड्रेस। सबसे पहले तो हम एडजेक्टिव्स को सेपरेट कर लेते हैं। ए सर्कुलर, बी ब्लू, सी ओल्ड एंड लार्ज, डी फाइनल एंड ई वेलवेट। अब हम इन्हीं सब वर्ड से सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे। ए कार इज मूविंग ऑन सर्कुलर पैथ। बी स्काई इज ब्लू। सी द ओल्ड मैन इज स्टैंडिंग। और इसी में जो नेक्स्ट वर्ड था गिव मी अ लार्ज साइज शर्ट, ये दो वर्ड्स में यूज हुए थे। डी वी वॉन द फाइनल मैच एंड ई आई लाइक माई वेलवेट ड्रेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। By 10 o'clock the boys were feeling quite sleepy. तकरीबन 10 बजे के वक्त लड़कों को बहुत नींद आ रही थी। Write the times on these clocks in your book. अपनी बुक में जो आपको ये क्लॉक्स गिवन है इसका आपने टाइम मेंशन करना है। एग्जांपल हमें गिवन है इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ 2:30। इस तरह से हमने इसको डिस्क्राइब करना है। हमें पिक्चर्स दी गई हैं और नीडल्स या इसके जो आर्म्स हैं इससे हमें पता चल रहा है कि क्या बज रहा है वक्त। तो इसको हमने नेम देना है हर क्लॉक को। फर्स्ट में है 10:30, सेकेंड में 12 o'clock, थर्ड फिर रिपीट हो रहा है 10:30 है, और फोर्थ में दोबारा से 12 o'clock का टाइम है। इस तरह से हम इसको सेंटेंस की फॉर्म में डिस्क्राइब कर देंगे। नंबर 1 पे है इट इज़ 10:30, नंबर 2 पे है इट इज़ 12 o'clock, नंबर 3 पे इट इज़ अगेन 10:30 एंड 4 पे इट इज़ 12 o'clock। The next section of exercise is section C, learning about language, ज़बान के बारे में सीखना। क्वेश्चन नंबर 1 है read pages 92 and 93 again। पेज नंबर 92 और 93 को दोबारा से आपने रीड करना है। Then divide the following sentences into their subject and predicate। देखिए जो 5 सेंटेंसेस हमें गिवन है इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, प्रेडिकेट में और सब्जेक्ट में, जो मेन पार्ट्स होते हैं किसी भी सेंटेंस के। तो रीड करते हैं पहले सेंटेंसेस को। ए है द बॉय फेल ऑफ हिज बाइसिकल। B. The bicycle was lying on the ground. C. The boy was on the ground too. D. He had hurt his arm. And E. A man took the boy to hospital. किसी भी सेंटेंस में जो किसी काम को परफॉर्म कर रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे फर्स्ट में है द बॉय, सेकंड में द बाइसिकल, सी में द बॉय, ही, डी में है ही, एंड लास्ट ई में है अ मैन। ये सब इसके सब्जेक्ट्स हैं। और बाकी का जितना भी पोर्शन है सेंटेंस का वो है प्रेडिकेट। फर्स्ट में है फेल ऑफ हिज बाइसिकल, सेकंड में वाज लाइंग ऑन द ग्राउंड, थर्ड में है वाज ऑन द ग्राउंड टू, फोर्थ में है हैड हर्ट हिज आर्म एंड लास्ट में है टुक द बॉय टू हॉस्पिटल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। ज्वाइन द सेंटेंसेस विद द वर्ड हु। एग्जाम्पल हमें गिवन है हु के वर्ड को यूज करते हुए हमने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर देना। यहाँ पे जो दो सेंटेंसेस हैं वो है दिस इज द मैन, फुल स्टॉप, ही केम हियर येस्टरडे। अब इसको चेंज करेंगे और हु लगा के ज्वाइन करेंगे तो दिस इज द मैन हु केम हियर येस्टरडे। 4 सेंटेंसेस और हमें गिवन है। ए फाइंड मी अ मैन, ही इज रिच एंड ब्रेव। बी दिस इज अ टीचर, ही टॉट माई ग्रैंडफादर। सी दिस इज द कारपेंटर, he made your chairs. D this is the girl, she came by bus। इन सब सेंटेंसेस को जब हम who की हेल्प से ज्वाइन करेंगे तो A find me a man who is rich and brave। B this is a teacher who taught my grandfather। C this is the carpenter who made your chairs। and D this is the girl who came by bus। The next section of exercise is section D, listening and speaking, सुनना और बोलना। क्वेश्चन नंबर 1 है योर टीचर विल रीड अ पोएम अलाउड। आपकी टीचर एक नज़म को ऊंची आवाज़ में पढ़ेगी। लिसन केयरफुली, मुहतात होकर या गौर से सुने। व्हेन यू हियर द नेम ऑफ अ कलर, जब एक आप कलर का नेम सुने, मार्क इट विद अ टिक, उसको आपने टिक से मार्क कर देना है। कलर्स एट डॉन, डॉन में जो कलर्स हैं वो किस किस तरह के होते हैं उन सबके नेम्स हमें गिवन है बॉक्स के अंदर। रीड कर लेते हैं। रेड, ब्राउन, ऑरेंज, पिंक, ब्लू, खाकी, वायलेट, टैन, ग्रे, ग्रीन, पर्पल, ब्लैक, येलो, सायन, वाइट, टील, शेड, आइवरी, गोल्डन, सिल्वर। डू यू नो व्हाट ऑल दीज कलर्स लुक लाइक? क्या आप जानते हैं ये कलर्स देखने में कैसे लगते हैं? डू सम रिसर्च, थोड़ी सी आपने रिसर्च करनी है। एंड फाइंड आउट, और तलाश करें विच वर्ड्स इन द लिस्ट अबव आर नॉट कलर्स। ऊपर से भी लिस्ट दी गई है उसमें कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो कि कलर्स नहीं हैं। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो जो मोस्टली है वो कलर नेम्स ही हैं, ऑरेंज, पिंक, ग्रे, ब्लू, सायन, वाइट, जो भी है, आइवरी वगैरह। लेकिन 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि कलर्स नहीं हैं, बस उनकी इंटेंसिटी को शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे टैन है और शेड है, ये दोनों वर्ड्स कलर का नेम नहीं है, ये वर्ड्स हैं जो कलर्स को डिस्क्राइब करते हैं।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू एवर बीन टू द टिकट ऑफिस एट द ट्रेन स्टेशन? क्या आप कभी भी रेलवे स्टेशन पर टिकट ऑफिस में गए हैं? देयर इज ऑलवेज अ लॉन्ग क्यू, वहाँ पर हमेशा एक लंबी कतार होती है ऑफ पीपल, लोगों की, वेटिंग, जो कि इंतजार कर रहे होते हैं टू गेट देयर टिकट्स, अपने टिकट हासिल करने के लिए। वी शुड ऑलवेज वेट फॉर आवर टर्न इन लाइन, हमें हमेशा कतार में या लाइन में अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। वी शुड नॉट जंप इन बिटवीन अ क्यू बिफोर आवर टर्न, और हमें कभी भी किसी भी कतार के अंदर मिड में नहीं घुस जाना चाहिए, अपनी जगह नहीं बना लेनी चाहिए लोगों के दरमियान, बल्कि अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए और आखिर में जाके खड़े होना चाहिए। थिंक अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट्स, हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है, इनके बारे में आपने सोचना है और उसको आंसर करना है। नंबर 1 है, इफ़ पीपल डोंट स्टैंड इन क्यूज़, अगर लोग कतार में नहीं खड़े होंगे, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन, आप क्या सोचते हैं कि क्या होगा? नेक्स्ट है, विल इट बी एन एग्जाम्पल ऑफ गुड बिहेवियर, क्या ये अच्छे बिहेवियर की निशानी है, अच्छे रवैये, अच्छे सलूक की निशानी है? थर्ड है, ओल्ड एंड सिक पीपल कैन नॉट स्टैंड इन लाइन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, बूढ़े या बीमार लोग कतार में बहुत ज़्यादा देर नहीं खड़े हो सकते। हाउ डू यू थिंक वी शुड हेल्प देम इन क्यूज़, आप क्या सोचते हैं हमें उनकी मदद किसी भी कतार के अंदर या किसी भी लाइन के अंदर उनकी किस तरह से हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते। People will start fighting and there will be chaos, फर्स्ट का ये आंसर है। सेकंड है, नो इट विल नॉट बी एन एग्जांपल ऑफ गुड बिहेवियर, एंड थर्ड का आंसर है, वी शुड हेल्प देम बाय गिविंग देम स्पेस इन स्टार्ट ऑफ अ क्यू, ये कतार के बिल्कुल शुरू में उनको जगह दें, और शुड स्टैंड इंस्टेड ऑफ देम, या फिर उनकी जगह खड़े हो जाए, इन्फॉर्म देम ऑन देयर टर्न, और उनकी बारी आने पर हम उनको बता दें, जो भी बीमार और बुजुर्ग या बूढ़े लोग हैं उनको। लुक एट दीज पिक्चर्स ऑफ अ क्यू, एक कतार की तस्वीरें ली गई हैं एंड टिकट ऑफिस, जो कि टिकट ऑफिस के बाहर लगी हुई है कतार। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं इज हैपनिंग, कि वहाँ पर क्या हो रहा है? टॉक अबाउट द पिक्चर्स इन दिस वीडियो, के बारे में बात करें। अगर हम पिक्चर्स को देखें तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं, सब पीपल वर स्टैंडिंग इन अ क्यू, कुछ लोग एक कतार में खड़े थे, दे वर वेटिंग, इंतजार कर रहे थे, टू बाय अ टिकट, एक टिकट खरीदने के लिए। सडनली अ पर्सन केम एंड स्टूड इन द मिडल ऑफ अ क्यू, एक शख्स आया, वो क्यू के मिडल में, कतार के बिल्कुल दरमियान में खड़ा हो गया था। पर्सन बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टेड शाउटिंग, जो भी लोग उसके आगे और पीछे थे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो गए हो? गो टू द एंड ऑफ क्यू एंड वेट फॉर योर टर्न, कतार के बिल्कुल आखिर में जाओ और अपनी बारी का इंतजार करो। द नेक्स्ट सेक्शन एक्सरसाइज इज सेक्शन ई, कॉम्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड द बॉयज टेल मोइज व्हेन दे अराइव्ड इन लाहौर, जब वो लाहौर में पहुंचे तो उन्होंने मोइज को क्या बताया? व्हेन समथिंग एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट हैपन, जब कोई बहुत एक्साइटिंग चीज़, बहुत खुशी वाली चीज़ या कोई बहुत अहम वाकया होता है। व्हाट वी वांट टू टेल अदर्स अबाउट इट, तो हम चाहते हैं कि हम दूसरों को उसके बारे में बताएं। व्हाट हैपेंड, आस्क्ड द स्टेशन मास्टर। What an exciting story you will have to tell, Moise, said Razi. Write the story of what Razi told the station master or Razi and Sahir told Moise. आप क्या सोचते हैं कि इन सब ने एक दूसरे को क्या स्टोरी सुनाई होगी जाकर? ड्रॉ अ पिक्चर टू, इसकी आप एक पिक्चर भी ड्रॉ करनी है। यू मे राइट इट एज अ डायलॉग कॉन्वर्सेशन इफ़ यू लाइक, इसको आप चाहें तो स्टोरी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर चाहें तो इसको आप एक डायलॉग की शक्ल में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइटिंग स्टोरीज फ्रॉम वर्ड, हमें कुछ वर्ड्स के हैं, हमने स्टोरी राइट करनी है। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू राइट अ स्टोरी, राइट अ शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है इन वर्ड्स की हेल्प से। वर्क इन ग्रुप्स, ग्रुप्स की शक्ल में काम करें। टू फर्स्ट थिंक ऑफ व्हाट विल हैपन इन द स्टोरी, और पहले सोचते हैं कि स्टोरी में क्या होगा। वंस यू आर डन, और जब आप ऐसा कर लें, चेक योर वर्क फॉर स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, अपने काम के स्पेलिंग और पंक्चुएशन को चेक कर लें। वर्ड्स हैं हमारे पास, रैबिट, टर्टल्स, रेस, स्नो, फास्ट, स्नैप एंड वुन। इन वर्ड्स को देख के हमें पता चलता है कि ये रैबिट और टर्टल्स की स्टोरी है। Once upon a time there was a tortoise. He was walking very slow. Rabbit made fun of him and offered him to take part in a race. Rabbit was fast and tortoise was slow. But due to nap, tortoise was not able to win the race. यहाँ पर हमने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी, इसलिए हमने 3 to 4 लाइन्स में इसको कवर करने की कोशिश की है, लॉन्ग स्टोरी नहीं लिखनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वंस यू आर डन राइटिंग योर स्टोरी, एक दफ़ा जब आप अपनी कहानी लिख लें, सी इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन योर टेल, अब देखेंगे कि आपको ये सब चीज़ें अपनी स्टोरी में मिल रही हैं या नहीं। नंबर 1 है, बिगनिंग, मिडल एंड एंड ऑफ स्टोरी, स्टोरी का बिल्कुल बिगनिंग में क्या हुआ, मिडल में क्या हुआ और एंड क्या था, इसके अलावा कैरेक्टर्स हैं उसमें या नहीं। नंबर 3 पे है, द प्लेस वेयर द स्टोरी अकर्स, और वो जगह जहाँ पे वो वाक़या हुआ या वो कहानी जिस जगह के बारे में है। और लास्ट में है, द टाइम व्हेन द स्टोरी हैपेंस, ये सब चीज़ें एक स्टोरी में होनी चाहिए। नंबर 4 पे है, वर्क इन पेयर्स, पेयर्स की शक्ल में काम करें या दो दो फ्रेंड्स मिलकर काम करें। आस्क अ फ्रेंड, अपने फ्रेंड से पूछे टू रीड हिज और हर स्टोरी आउट लाउड, जो भी स्टोरी उसने लिखी है उसको ऊँची आवाज़ में पढ़े। टू यू, आपके सामने, कैन यू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स मेंशन्ड अबव इन योर स्टोरी, सॉरी इन योर फ्रेंड स्टोरी, आपके पास जो ये मेंशन की गई हैं सब पॉइंट्स,
आपको अपने फ्रेंड की स्टोरी में मिलेंगे या नहीं, आपने ये चेक करना है। द लास्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन ऑफ एक्टिविटी। असलम रन्स अ स्कूल कैंटीन इन कराची। असलम कराची में एक स्कूल की कैंटीन चलाता है, बट हिज फैमिली लिव्स इन टर्की विच इज़ 11 आवर्स अवे फ्रॉम कराची बाई ट्रेन। लेकिन उसकी जो फैमिली है, उसके ख़ानदान वाले हैं, वो टर्की में रहते हैं, जो कि 11 घंटे का रास्ता बनता है कराची से बाय ट्रेन, रेल के ज़रिए अगर आप चाहें तो। ड्यू टू द रिसेंट लॉकडाउन, अभी जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से, ऑफ स्कूल्स, जो स्कूल में, जिसकी वजह से स्कूल बंद हो गए थे बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, जिसकी वजह कोरोना वायरस था। असलम वांट्स टू गो बैक होम टू हिज फैमिली। असलम अपने फैमिली के पास वापस जाना चाहता है। ही इज़ लुकिंग एट ट्रेन स्केड्यूल ऑन हिज फोन। वो अपने फ़ोन के ऊपर ट्रेन के जो टाइमिंग है वो देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ यू हैव टू मेक अ सिमिलर जर्नी, अगर आपको भी ऐसा ही सफ़र करना पड़े, विच ट्रेन वुड यू चूज़, आप कौन सी ट्रेन का इंतखाब करेंगे। हिंट है यहाँ पर, योर फैमिली डज नॉट वांट टू ट्रैवल एट नाइट, कि आपकी फैमिली रात में ट्रैवल नहीं करना चाहती, वो नहीं चाहती कि आप रात में सफ़र करें। तो आपने बताना है कि आप क्या टाइम चूज़ करेंगे। और सेकंड है, असलम इज़ राइटिंग अ टेक्स्ट मैसेज टू हिज फ्रेंड टीपू अबाउट हिज अराइवल। असलम अपने फ्रेंड टीपू को अपनी आमद के बारे में बता रहा है। हमने इमेजिन करना है, फ़र्ज़ करना है दैट यू आर असलम, कि आप असलम है, एंड योर ट्रेन हैज़ बीन डिलेड, और आपकी ट्रेन लेट हो गई है बाई 2 आवर्स, तकरीबन 2 घंटे। राइट अ टेक्स्ट मैसेज टू टीपू, अपने टीपू को एक टेक्स्ट मैसेज लिखना है, इन्फॉर्मिंग हिम, और उसको इत्तला करनी है, ऑफ द ट्रेन बीइंग डिलेड, कि रेलगाड़ी लेट हो गई है, एंड द न्यू अराइवल टाइम, उसको अपना नया जो अराइवल टाइम है, आमद का वक्त है, वो भी बताना है। आस्क हिम, उससे पूछें, इफ़ ही कैन पिक यू फ्रॉम द ट्रेन स्टेशन, क्या वो आपको ट्रेन स्टेशन से ले लेगा। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में तो हम 7 AM टू 6:28 PM जो फर्स्ट ट्रेन है हम उसको चूज़ करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, हाय टिपू, आई एम असलम, माय ट्रेन इज़ डिलेड बाय 2 आवर्स, सो आई विल बी लेट, द न्यू अराइवल टाइम विल बी 8:28 PM, कैन यू पिक मी फ्रॉम द स्टेशन, प्लीज़ इन्फॉर्म। इसके बाद इस चैप्टर के जो एक्सरसाइजेस के लास्ट पेज पर हमें एक प्रोजेक्ट गिवन है, अवॉइडिंग बुलिंग। In exercise D2, you learned about avoiding the bad behavior of breaking cues and jumping in between lines. इसमें हमने जो कतार तोड़कर अंदर अपनी जगह बनाने के और लाइंस को तोड़ने के बारे में पढ़ा था। Another behavior, एक और बुरा बिहेवियर क्या है, एक बुरा रवैया तो ये था, और दूसरा क्या है, that we should avoid is bullying others, हमें दूसरों को बुली नहीं करना चाहिए। Bullying is teasing or making someone feel really bad about themselves. और बुलिंग का मतलब होता है किसी बंदे को इतना ज़्यादा तंग कर देना या उसको ताने मारना कि उसको अपने बारे में बहुत बुरा फील होना शुरू हो जाए। इट इज़ नॉट समथिंग एनीवन शुड डू, और ये ऐसी चीज़ें जो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को पढ़ें, अबाउट अ बुलिंग इंसिडेंट। इसमें एक ऐसा वाक़या है जिसमें बुली का जिक्र किया गया है। तलाल एंड अहमद आर बोथ स्टूडेंट्स, तलाल और अहमद दोनों स्टूडेंट्स हैं, एट द सेम स्कूल, वे की स्कूल में पढ़ते हैं। एंड तलाल बुलीज अहमद डेली, और तलाल क्या करता है कि वो रोज़ाना अहमद को बुली करता है। अहमद लिव्ड इन फियर ऑफ तलाल, अहमद तलाल से डर कर रहता है। एवरी डे ही वुड गिव हिज लंच टू तलाल, और हर रोज़ वो अपना लंच तलाल को दे देता है। बट तलाल स्टिल बीट हिम अप, लेकिन फिर भी तलाल उसकी पिटाई कर देता है या मारता है उसको। ही सेड दैट इफ़ अहमद एवर टोल्ड एनीवन, और उसने कहा, और उससे ये कहता है कि अगर उसने किसी को भी बताया कभी भी, he would beat him up in front of all the other kids in the class, तो वो उसको क्लास के सारे बच्चों के सामने उसकी पिटाई करेगा और उसे मारेगा। अहमद was embarrassed and felt so bad, अब embarrassed का मतलब होता है शर्मिंदा होना, तो अहमद शर्मिंदगी महसूस करता है इस बात से, उसको बहुत बुरा फील होता है गोइंग टू स्कूल, क्योंकि उसको स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अब। एवरी डे हर रोज़ ही वुड गो टू द स्कूल इन फियर, वो डर में स्कूल जाता है, खौफ में स्कूल जाता है, दैट तलाल माइट बीट हिम अप, कि तलाल उसको मारेगा। इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों के सामने। ही कुडंट इवन टेल हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकता, और द टीचर्स, अपने टीचर्स को भी नहीं, बिकॉज क्योंकि ही वॉज रियली अफ्रेड ऑफ तलाल, क्योंकि वो सच में तलाल से बहुत ज़्यादा डर गया था। फाइनली आखिरकार वन डे, एक दिन, तलाल गॉट कॉट टीजिंग अहमद बाय वन ऑफ द टीचर्स, यानी एक दिन उसके टीचर्स में से एक ने ये सब देख लिया कि वो तलाल अहमद को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। दे वर बोथ सेंट टू द स्कूल काउंसलर, उनको स्कूल के काउंसलर के पास भेजा गया। तलाल गॉट इन अ लॉट ऑफ ट्रबल एट होम, और तलाल को घर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। एवरीवन फाउंड आउट हाउ तलाल बुलीड किड्स, और हर एक को पता चल गया कि तलाल किस तरह से बाकी बच्चों को डराता है या उनको धमकियाँ देता है। ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ, तलाल लर्नड हाउ टू मेक फ्रेंड्स, और तलाल ने सीख लिया कि दोस्त किस तरह से बनाते हैं। ही लर्नड, उसने सीख लिया, हाउ टू आस्क नाइसली इन केस ही वांटेड समथिंग, और अगर कोई चीज़ उसको ज़रूरत हो तो वो किस तरह बहुत अच्छे तरीके से भी दूसरों से मांग सकता है। अहमद ऑल्सो लर्न दैट ही शुड स्टैंड अप टू बुलीज, और अहमद ने भी ये सीख लिया कि उसको
डरना नहीं है, बल्कि पुलिस के सामने खड़े हो जाना है, डट के खड़े हो जाना है, डरने की इसमें कोई बात नहीं। ही शुड बी स्ट्रॉन्ग, उसको बहादुर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, एंड मोर कॉन्फिडेंट अराउंड देम, उनके आसपास जब वो हो तो उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद योर क्लास, अपनी क्लास से डिस्कस करें व्हाट लेसन्स बोथ तलाल एंड अहमद लर्न एट द एंड, आखिर में इन दोनों ने क्या सीखा। नंबर 2 पे है, आइडेंटिफाई 3 नाउन्स, 3 नाउन्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं, एंड 3 वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज में से 3 वर्किंग वर्ड्स बताने हैं और 3 नेम्स बताने हैं, एंड राइट देम डाउन इन योर नोटबुक, और उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। पैसेज में से अगर हम देखें तो हमारे पास जो नाउन्स हैं वो हैं तलाल, अहमद एंड टीचर, और वर्ब्स हैं कॉट, लिव्ड एंड बीट, यानी इसके अलावा भी काफ़ी है, लेकिन हमने 3 को चूज़ करना था, तो हमने 3 नाउन्स और 3 वर्ब्स चूज़ कर लिए हैं। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.